Hello everyone. Today we will do the topic of class 10th, that is introduction to trigonometry. First of all, let us know what is trigonometry. Trigonometry क्या है? Actually, trigonometry is a branch of mathematics that deals with sides and angles of a triangle. What is trigonometry? Trigonometry, it is a branch of mathematics that deals with sides and angles of triangle. So this is the trigonometry. This is the definition of trigonometry. Now, actually for the trigonometry, the triangle should be the right angle triangle. What is the triangle? The triangle for the trigonometry, the triangle should be the right angle triangle. What is the right angle triangle? This is the right angle triangle in which one angle is equals to 90 degree and the other two angles are acute angles. Means in this triangle ABC, angle B is 90 degree. ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है. दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. and other two angles are known as acute angle triangle. Means angle A and angle B are acute angles. ठीक है. So for trigonometry, what should be there? The triangle should be right angle triangle. Now let's see the sides, what we call the sides of this triangle. Suppose if we are taking this angle, let us denote this angle as a theta. This is known as theta. Okay. Now the opposite of this angle is known as perpendicular. The opposite of this angle is known as perpendicular. This is theta and the opposite of this is perpendicular. The base, this is known as base. Okay, and the opposite of this right angle is known as hypotenuse. Is it clear? मैंने क्या बोला, ये जो एंगल है ये थीटा लिया हमने. जो भी हमने एंगल एज्यूम किया उसका ऑपोजिट साइड्स जो है दैट इज नॉन एज परपेंडिकुलर. जो हॉरिजेंटल पार्ट है दैट इज नॉन एज बेस एंड ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनस. ठीक है. सपोज मैंने इस एंगल को चेंज कर दिया. नाउ सपोज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ए बी एंड सी. सपोज आई टेक एंगल ए एज थीटा. ओके. अगर मैंने इसमें एंगल ए थीटा लिया तो अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ थीटा क्या है, कौन सा साइड से, दैट इज बी सी. सो परपेंडिकुलर, दिस इज नॉन एज, दिस टाइम दिस इज नॉन एज परपेंडिकुलर. दिस वन इज नॉन एज बेस बिकॉज थीटा लाई ऑन दिस side, so this is known as base. And opposite of 90 degree, this is known as hypotenuse. Students, is it clear? ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर होगा. व्हाट इज परपेंडिकुलर, बेस क्या है एंड हाइपोटेनस क्या है. इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द थीटा we can assume that we can find what is perpendicular, what is base and what is hypotenuse. This is very important. So you should know this rule. ठीक है. Now let us talk about the trigonometric ratios. First of all, let me explain what is trigonometry. Meaning of trigonometry, I have already explained the definition of trigonometry.
Now you should know what is trigonometry. In trigonometry, it is the combination of three words. First one is tri. Tri means three sides. Three. Okay. Tri means three. Gon means sides. And metron means measure. Means trigonometry is the measurement of three sides. That is known as trigonometry. Is it clear? Trigonometry means it is a measurement of three sides. So it is known as trigonometry. This is the Greek name of the trigonometry. Okay. Now let us see what are the trigonometry ratios. Sin theta, cosec theta, cos theta, and tan theta, sec theta, and this is cot theta. Now there is one formula to remember all these trigonometric ratios. वो formula क्या है? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. What you have to remember? आप लोग कुछ भी इसको कोई भी मतलब किसी भी एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा है प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. ठीक है. तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? P एंड H. इसका फर्स्ट लेटर क्या है? B एंड H. और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? P एंड B. ठीक है. तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. ये किसके लिए यूज होता है? साइन थीटा के लिए यूज होगा. दिस इज यूज फॉर साइन थीटा. This is used for cos theta and this is used for tan theta. Now let us see the value of sin theta. तो sin theta क्या होता है? परपेंडिकुलर P अपन H. प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. So P अपन H is known as sin theta. What is cos theta? B अपन H. Base upon hypotenuse. And what is tan theta? Perpendicular upon base. See this? P upon B. प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. What is the first letter in प्यारे? P. P by H is for sin theta. B by H is for cos theta. And P by B is for tan theta. ठीक है. Now cosec theta is the reciprocal of sin theta. Means we can write cosec theta equals to 1 upon sin theta. ठीक है. तो 1 upon sin theta करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल sin theta का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा ये? H by P. ठीक है. cos theta का रेसिप्रोकल क्या है? sec theta. तो ये क्या हो जाएगा? H upon B. या फिर इसको लिख सकते हैं 1 upon cos theta. एंड कॉट थीटा का किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का. सो वी कैन राइट B अपन P 1 अपन tan theta. So this is known as trigonometric ratios. There are total of 6 trigonometric ratios. Sin theta, cosec theta. Reciprocal of sin theta is cosec theta. Cosec theta is 1 upon sin theta and sin theta is equals to 1 upon cosec theta. Cos theta, reciprocal of cos theta is sec theta and tan theta, reciprocal of tan theta is cot theta. Is it clear? तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है. प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. ये आपको याद रखना है. फर्स्ट लेटर P by H साइन थीटा, B by H कॉस थीटा एंड P by B tan थीटा. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझने के लिए क्या करना है?
हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन के लिए देखेंगे, कॉस के लिए देखेंगे tan साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन थीटा के लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या है, 0। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। नाउ कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री हम क्या करेंगे, ये पीछे से लेंगे। जैसे साइन आपने 90 डिग्री में जो वैल्यू है साइन की, वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स आप इसको बैक से रिपीट कर सकते हैं। 1 साइन 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। साइन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा क्या है, 0/1 कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो 0/1 क्या हो गया, 0। 1/2 1/√3। साइन tan 45 डिग्री 1। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 एंड tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, नाउ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मैंने क्या कहा था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स 1/0 क्या होता है, ये इन्फिनिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/√3 एंड 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। सेम सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 2/√3 रूट। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। 1/0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन नॉट डिफाइन। ठीक है, नाउ कॉट थीटा सेक थीटा का 1/0 नॉट डिफाइन, √3 1 1/√3 1 नॉट डिफाइन, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया। ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट नेक्स्ट क्लास में इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, कैसे वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप इसको शॉर्टकट से मैं आपको बताऊंगा। एक होता है थंब रूल्स, ठीक है, फिंगर रूल्स होता है, जिससे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसको याद कर लें, बाय हार्ट कर लें, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम। इसलिए आप द बेस्ट जो मेथड होता है वो आप इसको रिमेंबर कर लें, मेमोराइज कर लें, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नाउ ये आपका बेसिक्स है, इतना अगर आपको क्लियर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो मैंने बताया आपको बेसिक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये सारे क्लियर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपका 3 फॉर्मूला है, 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वैल्यू 1 आएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपको तीनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 कैसे आया? कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बेस स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वैल्यू क्या आ गई? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर 1, तो वैल्यू विल बी 1। तो इसलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर में भी आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो ये तीनों आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, अदरवाइज आप बुक से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। जो भी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 8 के एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया है। 8.4 हम करेंगे। तो सारे चैप्टर एक्सरसाइज से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गुड बाय।